Good morning once again. Welcome everybody in my channel Sakshi Gopala Chemistry Classes. I welcome all my dear students and all the viewers, teacher learners in my channel. आपने सभी ने इतना सपोर्ट किया साक्षी गोपाला क्लासेस को. फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. दोस्त जो कि इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉलो टू प्रेस द बेल बटन. उससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट्स मिलेंगी. सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो क्लास है दैट इज़ स्पेशली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट CBSE बोर्ड. ओके, तो अभी ये क्या हो रहा है कि आप थ्रू आउट इंडिया सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है. ओके, सो ये जो वीडियो लेसन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगी है ना. तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या बेटा, सभी लोग देखेंगे बोर्ड पे. चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th. अच्छा, प्लीज मेंशन डेट. दिस वीडियो लेसन इज फॉर द डेट 3rd of April. ओके, mention the date in your copy. It's very very important. The chapter name is some basic concepts of chemistry. It's concepts of chemistry. अच्छा, अब ये बताओ कि what do you mean by some? What is the meaning of the word some? Some से क्या समझते हो? Some means few, not अगर all होता तो all means you are talking about everything, but some means few. Second word is basic. What does the word basic means? इस चैप्टर का नाम पड़ा बेसिक, तो बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक मीन्स कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, देर आर सर्टन लॉज, देर आर सर्टन यूनिट्स, देर आर सर्टन फॉर्मूलेस विच आर अप्लाइड और एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, sometime explicitly, sometime implicitly. Okay, then concepts, you know, concept is formulas, laws of chemistry. तो मेरा इस चैप्टर में, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं, यूनिट पढ़ना है, फॉर्मुलेस पढ़ना है, जिनका एप्लीकेशन थ्रू आउट द केमिस्ट्री होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया, isn't it? अब we are going to see what are the various subtopics in this chapter. Okay, so you can write it down. Topic number 1 is SI units. ठीक है, international units. Definition of base units. Actually there are 7 basic units or base unit. उनकी definition which is given by SI system, वो आपको पढ़ना है. that portion is very very important. Now prefix, एक टेबल दिया हुआ है, that is another very important सब टॉपिक जिसको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है. अगर आपने प्रीफिक्स वाला टेबल ठीक से याद नहीं किया तो इट्स माई चैलेंज कि आपको पूरी की फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. Prefix is very very important portion of this chapter. Then comes fundamental and derived units. ठीक है. Then another important topic, significant figures. ठीक है, significant figure. This subtopic is also there in your physics portion. A very small coverage of significant figure is there in chemistry. Addition, subtraction, multiplication and division of the significant figure. How we calculate the significant figure, what are the various rules of calculating the significant figure, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आएंगी. Okay, then another very easy topic, that is various laws of chemical composition. chemical composition देखिए, कोई भी elements है, ठीक है, कोई atoms है, they combine together to form a molecule. Molecules या another elements or atom they combine to form compounds. तो जो compound बनते हैं उसका क्या rules है, किस composition में बनते हैं, और ऐसे क्या क्या various composition हैं, for laws हैं जिनके accordingly किसी भी compound का formation होता है, किस रेशियो में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं,
इस सारे लॉज को क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एंड थ्रू आउट द केमिस्ट्री ये लॉज फॉलो होंगे, ठीक है। इसीलिए इन लॉज को किस चैप्टर में रखा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। मास कैन neither be created nor be destroyed. Mass of reactant is equal to mass of the product formed. Second law is law of definite proportion. Law of definite proportion is hydrogen and oxygen का they combine in the definite in a fixed ratio to form the molecule of water, ठीक है। Law of multiple proportion, various nitrogen oxide, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये लॉज आपने क्लास 9th में क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट वन इज गैलो-सिक्स लॉ, फिफ्थ वन इज एवोगैड्रोस लॉ, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस पोर्शन इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूछा जाता है कि राइट द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद जो आता है आपको जो इसके बाद के सब टॉपिक्स हैं फ्रॉम दिस चैप्टर इज आई एम राइटिंग ओवर हियर द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which you have to read in this chapter is mole concept, ठीक है। very important topic and without understanding the सब टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट आपका जो केमिस्ट्री है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये टॉपिक ठीक से नहीं समझ में आया तो, ठीक है। एवरीवेयर हर जगह आपका मोल कॉन्सेप्ट आता है इन अ हिडन फॉर्म में, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट में पहला जो आता है दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। The first one is what is the difference between atomic mass, then what is the difference between molecular mass, ठीक है। What is atomic mass unit, what do you mean by gram molecular mass, then उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, आपका एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। देन आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसके बाद का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, हाउ यू कैन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन। अनदर टॉपिक इज एम्पेरिकल and molecular formula and mass, उसके बीच का जो रिलेशन है that relation is important and how you can calculate the empirical formula और molecular formula from the given data। इसके ऊपर एक इस सब टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पक्का आपके एनुअल एग्जाम में आता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, एक बार इसको नोटेड डाउन करिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, शुरुआत होगी क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर से। भाई केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ पे ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ होती है। इफ़ आई एम होल्डिंग दिस पेन एंड आई एम राइटिंग, ठीक है, तो इस पेन के अंदर जो इंक है ना, राइट, वो इंक एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल सब्सटेंस है। अब ये जो फ्लो हो रही है उसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी लगी हुई है, isn't it? So हमेशा आप जहाँ कहीं भी देखेंगे अपने चारों तरफ में, whatever things you are using, that is chemistry। अगर आप उसको गौर करके देखें, जैसे आप फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करें, आप बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, इतने सारे जो प्रिजर्व्ड फूड आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिंग एजेंट डाला जाता है, isn't it? सोप, डिटर्जेंट,
आपके जो आपके पेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, ठीक है। देन अनदर एग्जाम्पल शैम्पू देखिए, ये सब मैं आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। दिस ऑल थिंग्स यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। शैम्पू हो गया आपका, ठीक है ना, डव शैम्पू आप जो यूज़ करते हैं, कभी शैम्पू को पलट के उसकी कंपोजिशन देखिएगा कि उसमें कितने केमिकल कंपाउंड्स से बना होता है। आपका सोप हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी क्रीम्स हो गए, देन देयर आर मेनी थिंग्स। नो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ब्रॉड इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, पैरासीटामोल लेते हैं आप लोग, बहुत सभी लोग खाते हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है। पेन किलर है, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ होने वाला पेन किलर है पैरासीटामोल। ओके, अभी तो काफ़ी बैन हो चुका है इसका यूज़, बट इट इज़ यूज इन सर्टन एज अ सर्टन मेडिकेशन फॉर पेन किलर। अब आपका देखेंगे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सो मेनी न्यूक्लियर मेडिसिन हैं, ऐसे ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे केमिस्ट्री का स्कोप पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, इसे इंटरनेट पे सर्च करिए, उसको थोड़ा रीड आउट करिए, देखिए आपको कैसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। देन यू आर गोइंग टू लर्न कि भाई केमिस्ट्री तो इतनी वाइड है, हमने तो अभी एटम्स मॉलिक्यूल ही पढ़े हैं, isn't it? So ये होता है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से, आपको पहली क्लास में क्या बताया था भाई, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये 9th में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, अब मैटर से आगे बढ़ा तो आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, फिर होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनके सर्टेन एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ आपने कब तक पढ़ ली बेटा, क्लास 9th एंड क्लास 10th में पढ़ ली। नाउ अब आपको जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ 1.3, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का जो सब टॉपिक है दैट इज़ 1.3, उसी को मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी आपको। इज गिवन एज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेजरमेंट, isn't it? मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या हो सकता है बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस को लोगे, किसी भी कंपाउंड को लोगे, तो क्या आपकी बॉडी में कंपाउंड्स हैं, चलिए केमिस्ट्री को छोड़ा, क्या आपकी ह्यूमन बॉडी में कंपाउंड्स हैं, डेफिनेटली है। आपकी ह्यूमन बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में। ओके, आप वाटर कंज्यूम करते हो, सोडियम पोटाशियम आपके नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी है। आप जो शक्कर खाते हो दैट इज ग्लूकोज, isn't it? ग्लूकोज से आपको ऑब्वियसली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहा है। आप नमक खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, सोडियम मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अब ये देखिए कि केमिस्ट्री कितनी वाइड स्कोप में फैली हुई है, एवरीवेयर देयर इज केमिस्ट्री। यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली मैटर का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके, ह्यूमन बॉडी भी मैटर है एंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मैटर है। सो माइंड द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर से मैंने क्या समझा कि मैटर एक ऐसी चीज़ है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, मैटर कुड बी लिविंग और नॉन लिविंग, इट कुड बी एनीथिंग। द कंडीशन इज it must have mass and it occupies space, it has some volume, then that thing is a matter. अच्छा, अब ये बोलो कि क्या ये मैटर है, दिस स्कोप इज अ मैटर, ऑब्वियसली इट इज अ मैटर। तो इफ यहाँ पे एक वर्ड है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या हो सकता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हो सकता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, उस एक पर्टिकुलर बॉडी का क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। जैसा आपको आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो देन आप क्या यूज़ करते हो, आप स्केल से मेजर करते हो क्या, टेम्परेचर नहीं, फॉर दैट यू यूज़ थर्मोमीटर।
Now if you want to measure the weight of any body or weight of any object or weight of any non living thing, तो weight measure करने के लिए आप एक weighing scale का यूज़ करते हो, isn't it? अगर आपको distance measure करनी है किसी भी चीज़ की, then you will use another scale, and every scale is different, every unit is different. वेट मेजर करते हो केजी में, आप ऐसे तो नहीं बोलते ना कि ह्यूमन बॉडी का वेट 40 डिग्री सेल्सियस है, नहीं बोलते हो। टेम्परेचर ना अपना है तो 40 केजी टेम्परेचर है, ऐसा भी नहीं बोलोगे। तो हर मेजरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट आपको बताई गई है एज अ स्टैंडर्ड, और वही आप उसको यूज़ कर रहे हो। देखो स्टैंडर्ड चीज़ें जो होती हैं, द वर्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। रिगार्डिंग जो उस पर टाइम, प्लेस, एनी अदर फैक्टर, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज सेम थ्रू आउट, ठीक। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म मेजरमेंट। आप किसी भी चीज़ का जब तक आपके पास में उसकी वैल्यू नहीं है, उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है, तब तक आप वो दैट थिंग इज इनवैलिड। तब तक क्या होगा, क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो जाएगा। इफ आई वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, सिंपल, और टेम्परेचर ऑफ अ हॉट पैन, ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होगा कि भाई ये गर्म है, ये ठंडा है। इट हैज़ नो वैल्यू, इट हैज़ नो मीनिंग, ठीक है, राइट। अब अगर हम थर्मामीटर से मेजर करें और बोलें कि भाई इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, देन ये एक एग्जैक्ट मीनिंग होल्ड करता है। सो माइंड दिस थिंग, कब मीनिंग मिलती है किसी भी प्रॉपर्टी को, जब उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड होती है। नाउ इफ आई वुड आस्क यू टू measure the length of this copy, what you will do, एक स्केल निकालोगे जो आपके पेंसिल बॉक्स में, and you will just measure me and tell me this is 7 centimeter, 15 centimeter. Now the second question is, if I would ask you what is the height of this room or length of this room, then you need a bigger scale. You would bring an inch tape and then try to measure that. Another question, distance of your school from your house, another bigger scale. Then next question is distance of or how far is Delhi from your city, okay. Then it might be 1400 kilometers, it might be 1500 kilometers. How far is sun from earth, another bigger unit. Though this all are measuring distance, right, but the units are different. So how you would measure it, you need some basic standards, right? If I tell you one thing, if I ask you to measure the height of all the boys in your class, and I tell you this is the average height of 15-year boy, the height is 5 foot, that is a basic average height of any 15-year-old boy, ठीक है। Then I ask you to measure all the other students' height. आप कैसे बोलोगे, smaller than 15 or larger than smaller than 5 feet or larger than 5 feet. So this 5 feet is called as a standard set by your teacher, okay. So वैसे ही जो भी units होते हैं ना, these are set by certain laws, certain committee, जैसे केमिस्ट्री में होता है इंटरनेशनल यूपेक सिस्टम ऑफ अप्लाइड साइंस, यूपेक कमिटी होती है। ऐसे ही इंटरनेशनल कमिटीज़ होती हैं जो अपनी मीटिंग्स गैदर करते हैं, उसके बाद दे डिसाइड एंड दे मे फॉर्मुलेट एनी लॉ और दे फॉर्मुलेट एनी लॉज, एंड उसको क्या करते हैं, दे डिक्लेयर इट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। उस लॉ को थ्रू आउट सारे केमिस्ट उसे फॉलो करेंगे, कहीं पे किसी भी प्लेस पे किसी भी पर्सन पे वो चेंज नहीं होगा, ओके।
सो क्या हुआ था कि जब ये मेजरमेंट शुरू हुआ तो देयर आर बेसिक टू सिस्टम्स, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम, इट्स गिवन इन योर बुक. लेकिन बट क्या होता था कि ये चेंज हो गया, बट वी नीड एक ऐसा फॉर्मुलेशन चाहिए हमें विच इज सेम थ्रू आउट. देन कम्स द इंटरनेशनल यूनिट. नाउ सी ओवर द बोर्ड, इट्स रिटन हियर, and the topic number is, subtopic number is 1.3.1 and page number is 4. International System of Unit. It is established by 11th General Conference of Weight and Measurement. इन्होंने क्या कहा था कि भाई 7 units को उन्होंने क्या बना दिया, they declare as the fundamental units or they called as a base unit. अब base unit या fundamental units क्या होती है, उनके measurement के लिए आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, that is independent in nature. Okay, इसलिए उनको कहते हैं fundamental units. Now so these are the 7 fundamental or base units, ठीक है, which are accepted by the SI unit or International System of Units. इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे बेस यूनिट है, कैसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटीज और एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट कॉलम इज योर बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, these are the 7 physical quantities. Second is the symbol, ठीक है, how you can represent them, the name of that SI unit, and finally the last column is symbol of the SI unit. Now one by one let us try to understand this. The first one is length. Suppose if I have to measure the length, मैं क्या बोलूँगी, length may be 5 meter, isn't it, or 5 centimeter or 5 kilometer. Okay, so meter, centimeter, kilometer, ये अभी तक पढ़ा आपने. These are the various units of length, ठीक है, units of measurement of length. But which is the SI unit? SI unit is meter, ठीक है. तो length का symbol आप कैसे लिखोगे, small l, name of the SI unit meter, और symbol क्या हो जाएगा, स्मॉल m. सपोज अगर मुझे 5 मीटर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 5 एंड स्मॉल m. ओके, सेकेंड इज मास. मास सिंबल इज स्मॉल m. ओके, हमेशा कहाँ पे स्मॉल m है, कहाँ पे कैपिटल M है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेम ऑफ द SI unit, kilograms. Kilogram is the accepted as SI unit. grams, kg, क्या होगा SI unit आपका, kg. Then symbol क्या है, capital K and small g, that is called as kg. Third is time. Time का symbol क्या है बेटा, small t, ठीक है, small t is the symbol of time. Name of the SI unit, seconds. नॉट आवर्स, नॉट मिनट, क्या ऐसे यूनिट का रहेगा, सेकेंड. सिंबल क्या रहेगा, स्मॉल s. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक करंट. ये आपने फिजिक्स में पिछले साल पढ़ा था इन क्लास 10th. इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते थे, कैपिटल आई. कभी भी स्मॉल आई से नहीं लिखना है, हमेशा कैसे लिखोगे, कैपिटल आई. दैट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट. यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर. अब एम्पियर का सिंबल क्या होगा, कैपिटल ए. अगर मुझे लिखना है, इफ आई वांट टू राइट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज 5 एम्पियर, तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, आई एम राइटिंग हियर कैपिटल आई, दैट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल्स टू 5 एम्पियर इज द सिंबल ऑफ द SI यूनिट, कैपिटल ए. अंडरस्टूड. तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट लिखते हैं. देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. तो इन कॉमन लैंग्वेज टेम्परेचर जो आप बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऑब्वियसली, ठीक है. व्हाट आर द वेरियस यूनिट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर स्केल, एंड द SI यूनिट इज केल्विन. अब देखो डिफरेंस, टाइम इज स्मॉल t एंड टेम्परेचर इज कैपिटल T. ओके, टेम्परेचर इज 250 केल्विन,
then what I would write, capital T equals to 250 Kelvin, time t equals to 5 seconds, small t equals to 5 seconds, that way. Then the symbol is capital K. Next unit is amount of substance, 5 moles of water. ठीक है, what is the calculate number of molecules present in 5 moles of water. क्लास 9th में किया है आपने, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n सिंबल एंड द यूनिट इज MOLE और यहाँ पे क्या है MOL, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोल. देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बहुत ऑफनली फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में उतना यूज नहीं होता है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I, और ये जो नीचे लिखा है ना, जो भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे पे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, बिकॉज जो अल्फ़ाबेट लिखी दिस इज स्क्रिप्ट, इसके नीचे लिखोगे तो सबस्क्रिप्ट, इसके ऊपर लिखोगे तो सुपरस्क्रिप्ट. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज I, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है V, एंड द SI यूनिट इज कैंडेला, द सिंबल इज CD, स्मॉल c स्मॉल d. तो दिस आर दी 7 बेसिक यूनिट्स जो आपको याद रखनी है और उसको अच्छे से समझना है, स्पेशली इनके सिंबल्स एंड इनकी यूनिट्स कि किसमें कौन सी SI यूनिट है. ओके, सो क्लास इसके बाद जो है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है गिवन बाय द SI सिस्टम, वो आपको रीड आउट करनी है एट योर होम. दिस टॉपिक इज योर होमवर्क. Okay, moving to the next topic, that is table number 1.3, prefix is used in SI system. ये टेबल का मतलब क्या है और इसका यूज कहाँ पे है. सबसे पहले उसको समझो कि जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि आई आस्क यू टू कन्वर्ट 5 grams into kg. क्यों करोगे भाई ऐसा, क्योंकि kg क्या है, SI यूनिट है, ठीक है, एक्सेप्टेड है बाय SI है, तो मुझे हर यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पता होना चाहिए, उसको ज़रूरत है करने का, ठीक है. 5 किलोमीटर्स इंटू मीटर, isn't it? या फिर आप कह सकते हैं कि इफ़ आई आस्क यू टू कैलकुलेट how many meters are there in 5 kilometer or how many centimeters are there in a 5 kilometers, or convert 20 liters into decimeter or into meter cube. और सो ये सारे जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिसको यूनिट कन्वर्शन कहते हैं कि भाई एक यूनिट से एक बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में लाना. kg is a bigger unit, gram is smaller unit है. Liter is a bigger unit, milliliter is a smaller unit. तो ये जो इंटर कन्वर्शन होता है बिटवीन अ बिगर यूनिट एंड अ स्मॉलर यूनिट और स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट, तो ये इंटर कन्वर्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्शन. और यूनिट कन्वर्शन क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर कि भाई एक बिगर यूनिट इज हाउ मेनी टाइम्स एज कम्पेयर टू द स्मॉलर यूनिट. ओके, तो इसको समझते हैं विद द वेरी फर्स्ट मल्टीपल दैट इज 10 to the power -1. 10 to the power -1 का मतलब क्या हो बेटा, 1/10. अगर ये होगा मल्टीपल, प्रीफिक्स क्या होगा, डेसी, सिंबल क्या होगा, स्मॉल d, जैसे डेसीलीटर, ठीक है, अंडरस्टूड. देन अगेन द मल्टीपल इज 10, प्रीफिक्स इज डेका, कैपिटल D, स्मॉल a. 10 to the power -2 इट इज सेंटी, ठीक है, स्मॉल c, सेंटीमीटर्स, अंडरस्टूड. 10 to the power 2 अगर होगा, यानी अगर आपको मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्टो, स्मॉल h. अच्छा, 10 to the power -2 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/100. ओके, अब आ गया द नेक्स्ट वन, ये आपको आपके टेबल में मिल जाएगा इजीली से, बस उसको कन्वर्जन करना आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. 10 to the power -3 होगा तो क्या होता है,
प्रीफिक्स में मिली और सिंबल क्या हो जाएगा एम, इसे मिलीग्राम्स, 5 milligram of certain of 5 milligram of solute is required to dissolve. तो 5 milligram जो है उसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज करना है, 10 to the power minus 3. अंडरस्टूड. 10 to the power 3 होगा तो किलो हो जाएगा एंड द सिंबल इज के. जैसे किलोग्राम, 1 kilogram equals to 10 to the power of 3 grams. Again 1 kilometer equals to 10 to the power 3 meters. तो जहाँ पे भी ये k आएगा, k stands for 10 to the power of 3. It's called as multiple and prefix. ठीक है, multiple ये वाला होगा, prefix ये, और उसका सिंबल क्या हो जाएगा k. Understood? 10 to the power of minus 6 micrograms. ठीक है, माइक्रो सिंबल क्या आ जाएगा म्यू. 10 to the power 6 मेगा, सिंबल इज कैपिटल एम. जैसे कि अगर आपने बोला मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका पावर कंजम्पशन बता रहा है. अंडरस्टूड. 10 to the power minus 9 नैनो, सिंबल इज स्मॉल एन, नैनोग्राम्स. कन्वर्शन के लिए तब वहां पे ये आपको यूज होगा. 10 to the power plus 9. अब 10 to the power plus 9 so such a bigger unit. Getting my point? जितने मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे हैं वो मेजरमेंट उतना बड़ा होता जा रहा है. माइनस है मीन्स द मेजरमेंट इज स्मॉल, वेरी फाइन मेजरमेंट, वेरी वेरी फाइन मेजरमेंट. बट इज द मल्टीपल इज रेज्ड टू द पावर ऑफ सम पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स दैट द मेजरमेंट इज अ बिगर वन, गीगाबाइट. ठीक है, तो क्या है ये बाइट की बिगर यूनिट. ठीक है, गीगा कैपिटल जी. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पे स्मॉल है कहाँ पे कैपिटल है. कैपिटल जी लिखा है तो इट स्टैंड्स फॉर गीगा, इट मीन्स 10 to the power of 9. स्मॉल जी लिखा है तो स्टैंड्स फॉर ग्राम्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लस कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे स्मॉल है, कहाँ पे कैपिटल है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. रेस्ट इट्स वेरी इजी. नाउ सी द नेक्स्ट वन. इफ द मल्टीपल फैक्टर फॉर पिकोमीटर, देखो 10, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिकोमीटर एंड फेम्टोमीटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. इसका कन्वर्जन काफ़ी सारा रहता है. 10 to the power of minus 12 आपका प्रीफिक्स क्या यूज होगा बेटा, पिको. ठीक है, जैसे पिकोमीटर दिया, 15 पिकोमीटर दिया तो आपको उसको चेंज करना है. कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर माइनस 12, 10 to the power plus 12 बिगर यूनिट, टेरा कैपिटल टी, माइनस 15 इट्स फेम्टो, फेम्टोमीटर, स्मॉल एफ. 10 to the power plus 15 इट्स पेटा कैपिटल पी. अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to the power minus 18 होने से ऑटो होता है. ठीक है, और सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल ए. 10 to the power of plus 18 होने से क्या आपका होता है, एक्सा, एंड द सिंबल इज कैपिटल ई. अब एक यूनिट होती है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं. तो क्या होता है, कभी कभी ना बच्चे लोग ये सोचते हैं कि भाई इट्स रिटन समवॉट मिसप्रिंट. So this is another unit and this small a is different unit. इसको हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, this is auto and 10 to the power plus 18 is exa. अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे and you will get the idea how you can apply this in the unit conversions. Okay. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन होता है केमिस्ट्री में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज, वॉल्यूम कन्वर्जन. देखो वॉल्यूम की कितनी यूनिट्स आप पढ़ते हो, लीटर्स, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स हैं, उसमें इंटर कन्वर्जन होता है जब आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो. तो इसको थोड़ा समझो, और जिन बच्चों को नहीं बनता है ना वो उसको इस टेबल को एज इट इज देख के लिखो और उसको याद कर लो. सबसे पहले देखो ये जो टेबल है इट्स कॉल्ड एज वॉल्यूम कन्वर्जन टेबल. इस टेबल को हमने क्या बोला है, वॉल्यूम कन्वर्जन चार्ट. ठीक है, हर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझते जाना.
अगर आपको गिवन वॉल्यूम क्या है बेटा, इट्स गिवन वॉल्यूम जो है वो किस यूनिट में दिया हुआ है, लीटर्स में, ठीक। और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सपोज मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, जो भी आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से समझो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो अगर आपको लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 to the power of 3, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ml। जैसे 5 लीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10 to the power of 3 ml, तो कितना हो जाएगा 5000 ml। अंडरस्टूड। सेकेंड कन्वर्जन है जब आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक, क्या हो जाएगा 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से एक चीज देखो, 10 to the power 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आ जाओ, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपको याद, ओके। नेक्स्ट पे आइए, दैट इज लीटर किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर क्यूब में। तो आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -3, 10 to the power of -3 मीटर क्यूब। 5 लीटर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ओके। लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, किसी से भी इंटू नहीं करना है, इंटू 1, जैसे 5 लीटर इक्वल्स टू 5 डेसीमीटर क्यूब, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक ये कन्वर्जन है, एक अनदर यूनिट है क्वाट भी, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान से आप लोग सभी लोग नोट करेंगे, उसको याद करेंगे, इक्वल्स टू 10 to the power of -3 लीटर। सपोज दैट लीटर को तो आपने ml में कर लिया है ना, अगर आपसे पूछा जाता कि 7500 ml है, उसको आप लीटर में करिए, तो आप क्या करते हो, -10 to the power -3 से डेसिमल को पुट अप करते हो, है ना, तो वही होता है 10 to the power -3 लीटर्स। अगर आपको किस में करना है, ml टू लीटर्स। अगर आपको इस यूनिट से वापस इस यूनिट में आना है, अगर आपको गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया, मैंने कि इनमें से किसी एक यूनिट में दिया है और आपको उससे एक बिगर यूनिट बनानी है, तो ये जो है ना फिगर, अगर -3 है तो +3 होगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, जस्ट उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप बुक्स में देखते हो तो ये ज़रूर देखना कि फ्रॉम विच यूनिट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू विच यूनिट, ठीक है। 1.056 इंटू 10 to the power -3 क्वार्ट्स। अब इसके बाद ज़रा इस चीज़ को समझो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज गिवन हियर, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यू कैन डिराइव इट फ्रॉम हियर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ये कैसे आया, इसको थोड़ा समझो। देखो, मीटर को जब आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड क्या है ये, क्यूब है, क्यूब कर दिया। सो आफ्टर क्यूब क्या होगा, 10 to the power 2 का क्यूब क्या होता है, 10 to the power of 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी एक यूनिट को अच्छे से याद रखो और वो वाला कन्वर्जन को आप हमेशा थ्रू आउट केमिस्ट्री फिजिक्स को फॉलो कर लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बुक्स में आगे पीछे यूनिट्स दी रहती है, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो -3 बोला था, फिर यहाँ तो +3 है। तो यू मस्ट सी कि किस यूनिट से वो उसने किस यूनिट में कन्वर्ट किया है, ओके। So students, pressure is another important quantity which is very widely used in unit conversions. आप numerical करते हो तो pressure की different units के बीच में you have to do the conversion. So हम लोग समझते हैं what are the various units of pressure, bar, pascals, torr, atm that is atmosphere, ठीक है। So 1 bar equals to 10 to the power of 5 pascals. अब in another way 10 to the power 5 would be written as 10 to the power of 2 multiply 10 to the power of 3, and in place of 10 to the power of 3 I can write k. Just अभी प्रीफिक्स वाली टेबल में पढ़ा है, जहाँ कहीं भी 10 की पावर 3 होगा there I can use the word prefix k, ठीक है। तो 10 की पावर 2 किलो पास्कल्स हो गया। Another unit is 1 atmosphere। अच्छा, 1 atmosphere
that is equal to 760 mm of Hg. Okay, and it is also equals to 101.325 kilopascals. Another unit is 1 torr equals to 1 mm of Hg. Torr is also widely used unit of pressure. Next unit is 1 pascal equals to 1 kg, 1 newton per meter square. So that is what pressure per unit area is, force per unit area is pressure. Understood? So ये जो थे these are the various units of pressure. अब आपका जो इस वीडियो लेसन में आपने काफ़ी सारा प्रीफिक्स पढ़ा, ठीक है, आपने यूनिट कन्वर्जन देखा, देन आपने वॉल्यूम चार्ट मैंने आपको बता दिया, प्रेशर चार्ट बता दिया. अब इससे रिलेटेड जो होमवर्क रहेगा दैट आई विल पोस्ट यू. सर्टेन कुछ यूनिट कन्वर्शंस देंगे उसमें एंड आपको उसको सॉल्व करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर next topic, which is significant figures. I hope you like the video lesson. Don't forget to press the like button. Stay tuned with the channel. Thank you everybody.